بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النحو جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔ عنوان ہے الاسماء الخمسہ، یعنی 5 اسماء آج ہم پڑھ لیتے ہیں اور ان کا اعراب پڑھ لیتے ہیں، جیسے ابن، اخن، حمن، فو اور زو کا اعراب یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں، قاعدے میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے انہوں نے قاعدے میں الاسماء الخمسہ یعنی ابن، اخن، حمن، فو اور زو کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب ان پر یعنی اعراب بالحروف آ جاتا ہے، یعنی ان پر جب پیش ہونا چاہیے تو اس وقت کیسے آتا ہے؟ واو کے ساتھ، پیش ان کا واو کے ساتھ آتا ہے اور ان کا زبر جو ہے الف کے ساتھ آتا ہے اور ان کی زیر جو ہے یا کے ساتھ آ جاتی ہے، یہی انہوں نے کہا، جیسے ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے اب ان کو ہم ابھی نہ بنائے، اب ان کو یعنی یہ ابو ہونا چاہیے، یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یا متکلم یہ ہے، اس کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس حالت میں یہ اعراب نہیں آتا ہے ان کا۔ اسی طریقے سے دوسروں کو بھی آپ فٹ کر دیجئے گا۔ اب ذرا آپ پہلے دیکھ لیجئے گا کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جاء ابو کا، مثال میں جاء ابو کا، ابو کا، اب دیکھیے یہاں پر جاء ابو کا، یہ جاء کا فاعل ہے، جاء ابو کا۔ اب یہاں پر فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کا پیش جو ہے یہ واو کے ساتھ ہے، اس واو کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا اس کا پیش واو کے ساتھ آتا ہے۔ جاء ابو کا آپ کے والد آئے، یہی ابھی انہوں نے کہا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے گا یحب الناس، محبت کرتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں، یحب الناس ابا کا، یہی لکھا ہے انہوں نے ابا کا، ابا کا، ابا کا۔ اب دیکھیں یحب الناس، جاء ابو کا آپ کے والد آئے، یہاں پر فاعل تھا تو پیش آ گیا، پیش جو ہے وہ کیسے آ گیا؟ واو کے ساتھ آ گیا اس کا پیش۔ یحب الناس لوگ محبت کرتے ہیں، ابا کا، ابا کا یہاں پر مفعول بن رہا تھا، یعنی اس پر زبر ہونا چاہے تو اس کا جو زبر ہے وہ الف کے ساتھ آ گیا، اس کا زبر کیسے آ گیا؟ الف کے ساتھ اس کا زبر آ گیا، یعنی اس کا زبر الف کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد اور ایک مثال ہے رضی الناس عن ابی کا، رضی الناس ان ابی کا، ان ابی کا، دیکھیں ان کی وجہ سے یہاں پر زیر جو آ گیا وہ یا کے ساتھ آ گیا۔ رضی الناس لوگ راضی ہے آپ کے والد سے، ابی کا یہاں پر زیر جو آ گئی وہ یا کے ساتھ آ گئی، یہاں پر زبر جو آ گیا الف کے ساتھ آ گیا اور یہاں پر پیش جو آ گیا واو کے ساتھ آ گیا۔ یہی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ یعنی اعراب بالحروف آ جاتا ہے، حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب میں یعنی جب مفعول بن رہا ہو یا ان کا اسم ہو یا اسی طرح کانا کی خبر ہو تو الف کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے گا جب یہ حالت جری میں ہو تو یا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کن کا اعراب ہے؟ یہ ابن، اخن، حمن، فو اور زو، ان کے معنی بھی نیچے لکھے، جیسے ابن باپ، اخن بھائی، حمن شوہر کا بھائی یعنی خسر جسے بولتے ہیں، فو کہتے ہیں منہ کو، زو کو کہتے ہیں والا، یعنی کوئی زو مالن یا مال والا، جیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مثال لکھی ہے، دوسری مثال ابو کا عالم کبیر، آپ کے والد بڑے عالم ہیں۔ اب دیکھیں ابو کا چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس وجہ سے ابو واو کے ساتھ آ گیا، ابو کا آپ کے والد بڑے عالم ہیں۔ یکرم الناس ابا کا، لوگ اکرام کرتے ہیں ابا کا آپ کے والد کا، ابا کا یہاں الف کے اوپر زبر آ گیا ہے، یعنی جو الف ہے یہ زبر ہے اس کا، ابا یعنی جو لکھا ہے یہاں پر جو الف ہے ابا کے ساتھ لگا ہوا تو یہ زبر ہے، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے اس وجہ سے آیا یہاں پر ابا کا، تو ابو کو یہاں پر ابا کا بنا دیا۔ نحن نعتمد علی ابی کا، ہم آپ کے والد پر بھروسہ کرتے ہیں، علی ابی، ابا اب بن گیا ابی حالت جر میں چونکہ حرف جر داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیا کانا ابو کا خطیبن، آپ کے والد خطیب تھے۔ اسی طرح ان ابا کا طبیب ماہر، بے شک دیکھیں کانا کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے، وہاں پر دیکھ لیجیے گا کیسے رفع اس کا آ گیا، کانا ابو کا واو کے ساتھ اس کا پیش آ گیا ہے۔ ان ابا کا، بے شک آپ کے والد، کتاب کی طرف آپ دیکھ لیجیے گا ان ابا کا، ان کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، ابا اس کا جو زبر آ گیا وہ الف کے ساتھ آ گیا، ابا کا آپ کے والد ماہر ڈاکٹر ہے۔ اسی طریقے سے ہے اس کے بعد یشکرو الناس لابی کا، یہاں پر لام کی وجہ سے لام حرف جر ہے، ابھی یا آ گیا، یا کے نیچے زیر یعنی زیر کے بدلے یہاں یا آ گیا، یعنی لوگ شکر کرتے ہیں آپ کے والد کا، ابھی کا لام کے حرف جر کی وجہ سے۔ اب یہی انہوں نے اس میں مثال کے ساتھ لکھا ہے، یعنی یہ آپ ایسے استعمال کر سکتے ہو، یعنی اگر آپ ان کو دوسرے حروف کے ساتھ استعمال کر لو گے تو ایسے آپ کو یہاں پر خیال رکھنا پڑے گا، ان کو ہم نے کیسے استعمال کر لینا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا یعنی حالت رفع میں کیسے واو کے ساتھ آتا ہے پیش
और हालत नस्बी में इसका यानी ज़बर के साथ आता है या अलिफ के साथ आता है, और इसी तरीके से जर की हालत में इसका या के साथ आता है, जैसे हमने अभी आपके सामने बयान किया। उसके बाद देख लीजिएगा लिखा है तमरीन में, नीचे के जुमलों में अस्माए खमसा मरफू और मनसूब और मजरूर को पहचानो। यहाँ पर हमने ढूंढना है कि यहाँ पर मनसूब कौन है, मफूर कौन है, यानी जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया है उसी को हमने यहाँ पर सीख लेना। जैसे इहतरिम अखा का अल अकबर, एहतराम कर अपने बड़े भाई का। अखा का यहाँ पर जो है मफूल बन रहा है, इहतरिम का अखा आ गया, और अल अकबर जो है इसकी सिफत है। इसको फिलहाल छोड़ दीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान में रख लीजिएगा यहाँ पर अखा आ गया है तो अलिफ यानी इसका जो ज़बर आ गया अलिफ के साथ आ गया, ये मफूल है अखा। ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, ये इनमें से अस्माए खमसा में से है। आसिन इला अखी का अलबाइसी, यानी अपने भाई यानी मोहताज भाई के साथ एहसान कर। अब देखिए आसिन इला अखी, इला की वजह से अखी या यानी मजरूर आ गया। इसी तरीके से इन्ना अबा सईद रजुलन शरीफुन, बेशक अबू सईद एक शरीफ आदमी है। अबा सईद, इन्ना का इसम है अबा, तो अबा यहाँ पर इस वजह से आ गया चूंकि इन्ना का इसम है, इन्ना का इसम जो होता है वो मंसूब होता है और इसका नस्ब यानी इसका जो ज़बर आता है वो अलिफ के साथ आता है। जैसे यहाँ पर फिर से आप समझ लीजिएगा, इन्ना अबा इस वजह से आ गया चूंकि इन्ना का इसम मंसूब होता है, असल में था ये अबू, तो ये अलिफ आ गया इस वजह से इन्ना का इसम जो है मंसूब होता है, इन्ना अबा का इस वजह से आ गया। आया समझ में ये? तो ये आप जहन में रख लीजिएगा, ये इन्ना का इसम हो या काना की खबर हो तो उस वक्त इनका एराब यही आएगा, अलिफ के साथ इसका ज़बर आ जाएगा। इन्ना अबा सईद, बेशक अबू सईद एक शरीफ आदमी है। लअल्ल रजुल अल कादिम, शायद आने वाला आदमी अबू खालिद है, खालिद का अबू है। देखिए अबू खालिद यहाँ पर लअल्ल का जो लअल्ल की जो खबर है अबू खालिद है, लअल्ल का जो खबर जो उसकी होती है वो मरफू होती है, इस वजह से अबू आ गया वहाँ पर। लअल्ल अर्रजुला अल कादिमा, ये इसका इसम जो है मंसूब है। अर्रजुला अल कादिमा ये इसका इसम है, मौसूफ सिफत होकर इसका इसम है। अबू खालिद इसकी खबर बन रही है, इस वजह से अबू का एराब आ गया वाव के साथ। इग़सिल फ़ाका बाद कुल्ल तामिन, हर खाने के बाद अपना मुंह धो। देखिए यहाँ पर इग़सिल फ़ाका, यहाँ पर इग़सिल फ़ाका, ये फ़ाका जो है ये मफूल बन रहा है, इस वजह से फ़ाका आ गया है, यहाँ पर अलिफ के साथ इसका ज़बर आ गया है। इसी तरह ज़ा यदका अला फ़ी का इंद तसउब, यानी जमाई के वक़्त अपना हाथ चेहरे पर रखो। देखिए फ़ी है ये मुंह पर रखो, फ़ी जो है यहाँ पर अला यानी मजरूर, अला की वजह से मजरूर है तो यहाँ पर इसका ज़ेर जो आ गया ये आके साथ आ गया। इसी तरीके से इन्ना अखा का ज़ुल इल्म, बेशक आपका भाई इल्म वाला है। देखिए इन्ना अखा का, इन्ना का इसम जो है मंसूब है, अखा तो यहाँ पर अलिफ आ गया इन्ना का इसम के साथ। इसी तरीके से ज़ू ये इसकी खबर बन रही है, ज़ुल इल्मी ये हमने अभी पढ़ लिया, ये अबुन अखुन हामुन फामुन और ज़ू अभी हमने ये पढ़ लिया कि इनका एराब क्या आता है, अलिफ ये हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी में अलिफ के साथ, हालत जरी में या के साथ। यहाँ पर देख लीजिएगा इन्ना अखा का यहाँ पर आ गया, इन्ना अखा, इन्ना का इसमें इन्ना अखा का आ गया, ये वाला एराब आ गया, ज़बर का एराब, यानी ये पेश का एराब है, ये ज़बर का और ये ज़ेर का एराब है इसका। इन्ना अखा का ज़ू इल्म, अब देखिए इन्ना की खबर जो है मरफू होती है, वहाँ पर ज़ू आ गया, ज़ू आ गए तो ये ज़ू का एराब है, यानी वाला इल्म वाला है। युकरिमुन नासु ज़ल इल्मी, यानी लोग इकराम करते हैं इल्म वाले का। यहाँ पर देख लीजिएगा ये ज़ल इल्मी मफूल बन रहा है, इस वजह से ज़ा आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया ज़ा के साथ, यानी ज़ू बन गया ज़ा। आया समझ में? यह हालत नस्बी में बन गया। नहनु नुहिब्बु कुल्ला ज़ी मुरूअतिन, हम यानी हर बाअदब का इकराम करते हैं। देखिए बाअदब को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कुल्ला ज़ी, यहाँ पर कुल्ला की वजह से ज़ी आ गया, यानी मजरूर बन गया, इस वजह से ज़ी आ गया, हालत जर्री में है। अज़िम हमा उख्तिका कमा तुअज़्ज़िमु अबाका, देखिए कह रहे हैं कि अपने बहन के खुसर का, अपनी उख्ती का, अपनी बहन के खुसर का ताज़ीम कर जैसे कि ताज़ीम तो अपने वालिद की करता है। देखिए यहाँ पर भी है हमा, हमा यहाँ पर आ गया, ये मफूल बन रहा है हमा, इस वजह से आ गया। उख्ती कमा तुअज़्ज़िम अबा का, यहाँ पर अबा का आ गया, ये भी मंसूब बन रहा है, यानी दोनों ये हमा भी मंसूब है और अबा भी मंसूब है। ये तुअज़्ज़िम यानी ये हालत अमर की यानी मफूल बन रहे हैं, इस वजह से इनका यह एराब आ गया है। उसके बाद मैंने लिखा तमरीन नंबर 2, जुमले फैले के 2 जुमले ऐसे लिखो कि हर एक में अबुन और अखुन फ़ाइल हो। क्या है? हमने 2 जुमले ऐसे लिखना है जिनमें अबुन और अखुन फ़ाइल बन रहे हो। जैसे हम लिखेंगे जा अबू का, क्या लिखेंगे? जा अबू का, ये इसी तरीके से लिखिए जा अखू का, तो ये फ़ाइल बन गए, जा इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा जुमला फैले के 2 जुमले ऐसे लिखो कि हर एक में फू और जू मफूल हो, फू और जू मफूल हो। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, जैसे इग़सिल फ़ाका, क्या लिखा हमने? इग़सिल या नज़्ज़िफ़ फ़ाका, फू को हमने मफूल बनाया, जैसे नज़्ज़िफ़ भी लिख सकते हो आप,
नज़िफ़, नज़िफ़ फ़ाका या इग़सिल फ़ाका, ये भी लिख सकते हो आप। इसी तरीके से जू यहाँ पर है, जैसे अकरमतु ज़ा, मैंने इकराम किया, ज़ा मा, ये ज़ल इल्मी, क्या लिखना है हमने, ज़ल इल्मी लिखेंगे, इल्मी, ज़ु इल्म। जैसे अभी हमने ये पीछे पढ़ लिया था युक्रिमुन नासु ज़ल इल्मी, वहाँ भी इस्तेमाल हो गया है पीछे। इसी तरीके से जुमला इसमें के दो जुमला ऐसे लिखो कि हर एक में अखुन मुब्तदा हो, जैसे हम लिखेंगे अखू का आलिमुन, क्या लिखेंगे, आली, यहाँ पर ये मुब्तदा बन रहा है। इसी तरीके से उसके बाद लिखे दो जुमले हमने बना देने, जैसे अखू का, इसी तरीके से लिख लीजिएगा अखू का गायबुन, गायब है, आया समझ में। उसके बाद है जुमला इसमें के दो जुमले के हर एक में अबुन मुब्तदा हो, इसी तरीके से लिखे अबू का आलिमुन, अबू का हाजिरुन, क्या लिख लीजिएगा, अबू का हाजिरुन, बहुत ही आसान है। उसके बाद लिखा तमरीन नंबर 3, अस्माए खमसों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक मुब्तदा हो। अब ऐसे यानी हर एक ये अस्माए खमसा जो है उनको आपको तमाम को कैसे इस्तेमाल कर लेना है कि ये क्या हो, मुब्तदा बन रहा है। जैसे हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे अबुन, अबू, अबू का, इसी तरीके से अखू का, इसी तरीके जू मा लिन या जुल इल्मी, क्या लिखेंगे, या जुल इल्मी भी लिख सकते हो आप, जो भी आप लिखोगे फिर। इसी तरीके से उसके बाद है हमू का, है समझ में। इसी तरीके से उसके बाद फू का यानी आपका मुँह, जू, ये हमने जू इस्तेमाल किया, जैसे 1 2 3 4 और 5। जैसे आप लिखेंगे हम अबू का आलिमुन, आलिमुन, अखू का तालिबुन, आया समझ में, तालिबुन, जुल इल्मी हाजिरुन, हाजिरुन, हमू का गाइबुन, गाइबुन, फू का जमीलुन, जमी, आपका मुंह खूबसूरत है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इसे इस्तेमाल किया मुब्तदा के साथ। उसके बाद उन्होंने लिखा फिर इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि मफूल हो। जैसे हम लिखेंगे रअयतु अबाका, अब क्या लिखेंगे हम, रअयतु अबाका, रअयतु, उसके बाद लिखेंगे हम अबाका, रअयतु अबाका। इसी तरीके से रअयतु अखाका, यहाँ पर लिखेंगे हम अबाका, अबाका, रअयतु अखाका, क्या लिखेंगे, अखाका, मैंने आपके भाई को देखा। रअयतु ज़ल इल्मी, क्या लिखेंगे, ज़ल इल्मी या ज़ा मालिन, ज़ल इल्मी। रअयतु हमाका, रअयतु फ़ाका, आया समझ में। इसको आप ऐसे बनाओगे, फ़ाका ऐसे ही, ये हमाका, तो ये ऐसे रअयतु आप इस्तेमाल कर लीजिएगा तो ये मफूल बन गए, ये काट दीजिएगा, ये यहाँ पर इसके साथ नहीं रख दीजिएगा। तो उसके बाद लिखा इन्होंने फिर इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक मजरूर हो। अब हमने इनको मजरूर बना देना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ज़हबतु इला अबीका, ज़हबतु इला अखीका, ज़हबतु इला ज़ी मालिन, क्या लिखेंगे, ज़हबतु लिखेंगे हम। जैसे अभी हमने लिखा है राय, तो अब लिखेंगे ज़हबतु, ज़हबतु इला अबी का लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अबी का, अबी का, ज़हबतु इला अबी का। इसी तरीके से ज़हबतु इला अखी का, क्या लिखेंगे, ज़हबतु इला अखी का। इसी तरीके से ज़हबतु इला ज़ी मालिन या ज़िल इल्मी, हमी का, फ़ी का, आया समझ में, ऐसे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, या हमी का। तो ऐसे यानी ज़हबतु इला के साथ और ये मजरूर बन जाएंगे। उसके बाद लिखा इन्होंने फिर इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक इन्ना का इस्म हो। अब हमने इनको इन्ना का इस्म बना देना है, क्या लिखना है, इन्ना का इस्म बना देना है। जैसे अब बनाएंगे हम इनको इन्ना का इस्म, तो उस वक्त कैसे लिखेंगे, जैसे इन्ना अबाका आलिमुन, क्या लिखेंगे। इसी तरीके से इन्ना अखाका तालिबुन। इसी तरीके से इन्ना ज़ल इल्मी हाज़िरुन। इसी तरीके से इन्नल, और क्या था यहाँ पर, इन्ना हमाका गायबुन। इसी तरीके से इन्ना फा का जमीलुन, आया समझ में। तो ऐसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो इन्ना के साथ, जैसे हमने इस्तेमाल किया, इनको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इनको जुमल में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक काना का इस्म। अब हमने इनको काना का इस्म बना देना है, तो सिर्फ हमने वाह बढ़ा देना है और यहाँ पर इन्ना हम लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम काना, अब लिखेंगे लेकिन अबू, क्या लिखेंगे, काना अबू का, काना अखू का, ऐसा में काना जुल इल्मी। और काना की खबर क्या बनाएंगे हम, मनसूब। जैसे काना अबू का आलिमन, काना अखू का तालिबन, ऐसा में काना जुल इल्मी हाजिरन, काना
हमू का, हमू काना हमू का गाइबन, गाइबन चूंकि काना की खबर जो मनसूब होते हैं, काना फू का जमीलन, तो ये हमने ऐसे भी इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो तरकीब है इसको खुद भी देख लीजिएगा। तो ये हमारी पहली जिल्द कंप्लीट हो गई है, दुआओं में याद रख लीजिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। तो चलिए हो गया मेरा आज का सबक।